Hey everyone, this is Himani. Honestly, it took me a lot to touch that on button on the camera because before this I have done hundred of settlements, hundred of setups, hundred of times checking the lightings, and I just thought just to click on this camera and talk about what I feel and what I'm doing currently right now. So I'm a girl who was from middle class family, and as soon as I completed my 12th and my graduation also, I found that this degree of graduation is of no use to me, and I started up looking preparation of the government job like SSC jobs, and I did prepare 1.5 years for that also, but I gave exam for that, but nothing happened. And after that, one of my friend told me about a CS course, which is company secretary course, and there are three stages. One is CSET, which is CSAT exam, and second is executive, and third is professional. And for that, and after that, you have to complete your 21 months training, and then you are a company secretary in a top management company, and it's a very respectable job, it's a very high profile job, you get a good paid and this and that. So in while I was listening that, I was imagining that in my head. It sounds so fancy to me, but as soon as I started my journey with CSCT, because my graduation result was still pending, so I had no option otherwise going with CSCT. So I started preparing for CSCT, since I have also prepared for SSCGD 1.5 years, and I could not do well there, but I have studied that portion in my previous time also, and the same subject was in the CSCT subject. Like there was a reasoning, there was a quantitative aptitude, there was GK GS there, but there was I think three new subjects to me, which was economics. I have never studied economics in my life, and there was legal aptitude like contract acts and all that के मेरे सामने आ गई, ये कोर्सेज वो कोर्सेज फलाना कोर्सेज ढमकाना कोर्सेज की लाइन लग गई मेरे आगे निकल। मुझे देखना था कि मैं किस टीचर से कंफर्टेबल हो पाती, तो एज सुन एज आई फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासेस कहीं से भी बाय करने से पहले आई आई गिव अ कंपैरिजन टू माई सेल्फ कि मैं किस टीचर से ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही हूँ, किस टीचर से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। कुछ टीचर्स इतना टाइम कंज्यूम कर रहे थे कि अगर मैं वही देखते रह जाऊँ तो मैं सच में कभी भी नहीं कर पाती। आई नॉट नेम दैम, बट दे आर ऑन यूट्यूब एंड यू ऑल नो दैम हु दे आर, बट सम ऑफ देम लाइक वेरी गुड एंड क्रिस्पी। एंड उसमें से एक मैं अपनी फेवरेट मेंटर का नाम लेना चाहूँगी, विच इज़ CA कंचन गुप्ता, जिनसे मैंने लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, एंड दैट वाज लाइक अ बूम टू माई माइंड कि ये इतना ईजी कैसे हो सकता है। सो दैट वाज माई इकोनॉमिक्स टीचर फ्रॉम PW। आई took my CSCT course, which was so well structured and all that। अब मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ किसी भी कोर्स की and all that, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ। मेरे को कहीं भी ऐसे नहीं भटकना नहीं था कि हाँ मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगी या ये पढ़ लूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही अनगिनत चीज़ें हैं और वहाँ पे वो जो बार बार एड्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। तो मेरे को ये था कि मुझे स्ट्रैटेजी वाइज ही बना के चलना और मुझे कोर्स प्रॉपर लेके ही पढ़ना है। सो मैंने अपना CST का बैच लिया, एंड देन उसमें से मैंने पढ़ के मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। तो मेरा जो CSCT जो था वो मेरा एक बार में निकल गया था। मेरे टाइम पे जो था वो लैपटॉप यानी कि लैपटॉप बेस्ड होता था, यानी कि ऑनलाइन घर से बैठ के तुमको देना था। लेकिन अभी जो है MCQ भी हट चुका है और सब्जेक्टिव वाइज भी हो गया, यानी कि अब आपको सेंटर पे जाके देना पड़ेगा और वो सब्जेक्टिव वाइज है, वो MCQ वाइज नहीं है। ओके, सो आई एम इन द फ्लो राइट नाउ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। इससे पहले माई हैंड्स वर शिवरिंग, but since I've started it, it's feeling good. So let's continue more. Okay, so after I gave my CSCT के बाद there was an executive one, and CSCT में क्या होता है कि CSCT is like a very बहुत ही कम फीस में हो जाता है, बैच में बहुत कम फीस में मिल जाता है, आराम से पढ़ के तुम निकल जाते हो। निकल अगर इन माई केस आई वॉज लकी बिकॉज मैंने GD के लिए पढ़ा हुआ था। निकल कुछ लोग का उसमें भी नहीं निकल पाता है। आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स, खैर उस बारे में बात नहीं करेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव का टाइम आता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव में यू हैव टू एनरोल, जिसमें तुम्हारा कुछ 15,000 का, शायद 15-18,000 के आसपास एग्जीक्यूटिव की ICSI की एनरोलिंग फ़ीस होती है। यू हैव टू पे दैट, एंड ICSI आपको इस तरह के मॉड्यूल्स वगैरह भेजता है, एंड आपकी रजिस्ट्रेशन करता है। और TDOP वगैरह के लिए भी आपको कुछ चीज़ें बताता है। TDOP के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, अगर तुमको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। लेकिन अभी हम जो मेन मेरी जर्नी के बारे में बात करें तो मैं उस बारे में बात करना पसंद करूँगी। सो
एग्जीक्यूटिव में क्या होता है ना, व्हेन आई रीजन एग्जीक्यूटिव आई गॉट टू नो कि ये जो मेरा CSCT का सर्टिफिकेट है ये 1 ईयर तक की वैलिड है। अगर मैंने एग्जीक्यूटिव में जो है एनरोल नहीं किया तो ये बैन्ड हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ द मेन पार्ट कम्स हेयर विच वॉज टू गेट एडमिशन इन द एग्जीक्यूटिव। सो I could not see myself going in executive so far because there was there was there was huge there was huge because there was huge shortage of fund. So as I was already in after my graduation phase and my family could not able to fund my education. Sorry if I'm lower that phase, but I want to speak. It's not a big deal. It's not a big deal, but still okay. So for that fees, yeah, I had to do a job of 6 month job, right? For to get the fees of the course which I have to pay to ICSI, and the fees of the course that I have to buy from PW so that I can study the whole course, and another a laptop. For myself, a laptop is very important if you enroll yourself in a professional course like CA, CA or CMA. So a laptop is required for in general. अगर आप टीचर में ट्रेनिंग भी करते हो तो लैपटॉप इज रिक्वायर्ड। टाइम को देना था, इट वॉज December 2025, but due to job I had not studied enough, so I left December 2025 and I gave this June 2025. So we are in July right now and I've done my June ka exams, right? So as soon as I open the June ke exams, and I see every paper. I see of GAGL, I see a paper of CLaw, SBIL and CAFM. So as I was I would love to tell कि what mistakes I made while giving group 1. अगर सबसे पहले अगर तुम जो हो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तुमने कभी भी अपने लाइफ में कॉमर्स नहीं पढ़ी है, ऑब्वियसली नहीं पढ़ी होगी, बट तुम जो हो ग्रुप 1 के लिए जा रहे हो। अभी हम ग्रुप 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए जा रहे हो तो तुमको क्या करना है कि बट आई डिड, मैंने GIGL पढ़ा, मैंने CLaw पढ़ा, मैंने SBL पढ़ा, और मुझे लगा कि भाई FM पढ़ के तो मेरे 40 मार्क्स आ ही जाएंगे, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। FM में भी मतलब आई नेग्लेक्टेड सो मेनी थिंग्स, जो मुझे लगा कि भाई आई वॉज सो नेग्लिजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे लगा कि भाई 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इन रियल टाइम ऐसा नहीं, 53% ही मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था अपने CFM का और मैं पेपर देने चली गई थी। बट CFM में क्या होता है, यू कैन नॉट पास CFM विदाउट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और विदाउट FM, सो यू हैव टू स्टडी कंबाइनली, जिससे कि एक बैलेंस बन जाए कि भाई इतना तो तुम्हें पासिंग परसेंटेज हो जानी चाहिए पढ़ने के बाद। सो दिस वॉज माई मिस्टेक नंबर 1 कि मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी अच्छे से, एंड मिस्टेक नंबर 2 वॉज दैट कि मैंने चीज़ों को रिवीजन नहीं किया। मैंने चीज़ों को पढ़ा बट मैंने उनको रिवीजन नहीं किया। मैं पढ़ती गई सारी चीज़ें पढ़ती गई, देन मेरा फिर एग्ज़ाम देने का टाइम आ गया। जब मैंने पेपर जाके खोला, मैंने देखा कि अच्छा रेस जुडिकाटा है, ये चीज़ें आर्टिकल 19 में, आई वॉज अवेयर कि हाँ ये चीज़ें मेरे माइंड में हैं, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है। बट जब मैं एग्ज़ाम लिखने जा रही हूँ तो क्वेश्चन वॉज नॉट एक्चुअली अबाउट रेस जुडिकाटा, इट वॉज लाइक आस्किंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा। सो वो चीज़ मुझे नहीं पता। सो वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन देन दिक्कत हुई क्योंकि शायद कॉन्सेप्ट मिसमैच हो गए या मैं भूल गई। सो वो सारी चीज़ें थी। और थर्ड चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि भाई अगर तुमको लगता है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट ए वाले चैप्टर्स पढ़ के हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ICSI हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देता है और हर एक चैप्टर को वो ज़्यादा वेटेज भी दे सकता है, हर एक चैप्टर को वो कम वेटेज भी दे सकता है, लेकिन वो हर चैप्टर से क्वेश्चन देता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। कोई भी टेस्ट नहीं दिया। मैंने PYQ किए थे, मुझे पता था कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, आई कुड हैंडल देम वेरी वेल, बट मैंने टेस्ट नहीं दिया। मैंने अपनी जो ब्रेन की कैपेसिटी है उसको चेक नहीं किया कि मैं कितने पानी में हूँ। तो मैंने आई थिंक वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया है, मतलब बोलते बोलते 12 मिनट हो गए हैं, बट आई वुड नॉट टेक मच टाइम। सो हेयर in this channel what we will get, like we CS student what we will get. So I would love to share my journey more over where I make mistakes, and जो अभी बच्चे हैं एनरोल होंगे या नहीं, मतलब जो सोच रहे हैं इस कोर्स के बारे में, it's a good course, no
No doubt it's a good course if you are aiming to shape your future sitting in a room and doing isolating yourself and doing hard work on yourself. There's nothing wrong about it, and cutting your relatives, your fake friends who doesn't care about you. And I think it's a very good investment on yourself and you should go for it 100%. हो गया मुझे TDOP के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट कर देना. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. एंड या एग्जीक्यूटिव से CCT से भी कोई भी रिलेटिव डाउट है तो वो बता देना, मैं उसको भी उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी. बट दिस वॉज द होल वीडियो जहाँ पे जो जो मिस्टेक्स मैंने अभी तक की हैं वो मैंने सारी मिस्टेक्स आपको बताई हैं. एंड आगे जो भी फ्यूचर में चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करूँगी इस कोर्स को लेके, वो सारी चीज़ें मैं आई एम गोइंग टू पुट हियर. So thank you so much for listening to me and thank you so much for clicking on this video. So yeah.